سلطنت عثمانیہ پر سورج کسی زخمی پرندے کی طرح غروب ہو رہا تھا اور اس کی آخری سرخ کرنیں شاہی شکارگاہ کے گھنے درختوں کے درمیان سے اس طرح چھن کر آ رہی تھی جیسے خون کی لکیریں ہوں۔ شہزادہ آریان اپنے وفادار کتے زرر کے ساتھ گھوڑے پر سوار جنگل کے اس حصے میں داخل ہو رہا تھا جہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آریان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی شاہی غرور اب بھی موجود تھا جو اسے اپنے والد سلطان غیاث الدین سے ملا تھا۔ اس کا گلا پیاس سے سوکھ چکا تھا اور پانی کا مشکیزہ بھی خالی ہو چکا تھا۔ دور دور تک پانی کا کوئی چشمہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی آنے والی آفت کا اشارہ لگتی تھی۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی پرندوں کی آوازیں اچانک بند ہو گئی۔ زرر جو اب تک خاموشی سے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا تھا یکدم رک گیا اور اس نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ اس کے گلے سے ہلکی سی غرغراہٹ نکلی جیسے وہ اپنے مالک کو کسی چھپے ہوئے خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ آریان نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور چاروں طرف دیکھا، مگر اسے بوڑھے برگد کے درختوں اور لٹکی ہوئی جڑوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ کیا ہوا زرر؟ کیا تمہیں اس سوکھی زمین پر پانی کی خوشبو آ رہی ہے؟ آریان نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کتے نے جواب میں صرف دم ہلائی اور بے چینی سے زمین کو سونگھنے لگا۔ اسی وقت آریان کی نظر ایک بہت بڑے اور پرانے درخت پر پڑی جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی درخت کی ایک موٹی شاخ سے پانی کے صاف قطرے وقفے وقفے سے ٹپک رہے تھے اور نیچے ایک قدرتی پتھریلے پیالے جیسے گڑھے میں جمع ہو رہے تھے۔ آریان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس پتھر کے پاس جا پہنچا۔ اس نے کمر سے چاندی کا ایک چھوٹا سا پیالہ نکالا اور ان قطروں کے نیچے رکھ دیا۔ ایک ایک بوند گرتی رہی اور شہزادے کا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی پیالہ آدھا بھرا اس نے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی، مگر اچانک زرر نے زوردار چھلانگ لگائی اور آریان کے ہاتھ سے اس طرح جھپٹا کہ چاندی کا پیالہ دور جا گرا اور سارا پانی مٹی میں جذب ہو گیا۔ آریان حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرر؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے زور سے کہا، مگر کتا خاموش نہ ہوا۔ وہ مسلسل اس درخت کے اوپر والی شاخ کی طرف دیکھ کر بھونکتا رہا اور اپنے مالک کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ آریان نے ایک بار پھر سے پیالہ اٹھایا، اسے صاف کیا اور دوبارہ پانی بھرنے لگا۔ اس بار اس نے غصے کو قابو میں رکھا، مگر اس کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی دوسرا پیالہ بھرا، آریان نے بہت احتیاط سے اسے اٹھایا، مگر اس سے پہلے وہ ایک گھونٹ بھی پی پاتا۔ زرر نے دوبارہ وہی حرکت کی۔ اس بار اس نے آریان کی کلائی کو دانت سے پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ پیالہ پتھر سے ٹکرا کر مڑ گیا اور شہزادے کے ہاتھ پر خراش آ گئی۔ شاہی خون کے قطرے زمین پر گر پڑے۔ اب آریان کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اسے لگا یہ جانور جس پر اس نے برسوں بھروسہ کیا ہے اب اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ نمک حرام، تجھے میری پیاس پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ آریان نے اپنی میان سے خنجر نکالا۔ اس کی عقل پر پیاس اور غصہ حاوی ہو چکا تھا۔ زرر کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ اب بھی بونک رہا تھا جیسے التجا کر رہا ہو، اوپر دیکھو، مگر آریان غصے میں اندھا ہو چکا تھا اور اس نے خنجر زرر کے سینے میں اتار دیا۔ وفادار جانور زرر نے ایک آخری بار اپنے مالک کے ہاتھ کو چاٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ آریان نے ہانپتے ہوئے اپنا خنجر صاف کیا اور تیسری بار پیالہ بھرنے کے لیے مڑا، مگر جیسے ہی اس نے اوپر کی طرف دیکھا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس شاخ سے پانی ٹپک رہا تھا وہاں کوئی چشمہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں ایک بڑے کالے اژدے کا کھلا ہوا منہ تھا۔ اس کی زبان سے زہریلا لعاب ٹپک رہا تھا جو نیچے لگے پتھر پر جمع ہو رہا تھا۔ وہ پانی نہیں بلکہ ایک جان لیوا زہر تھا۔ آریان کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زرر زمین پر مردہ پڑا تھا۔ شہزادہ صدمے کی حالت میں وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی اس کی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ اچانک جنگل کے اندھیرے حصوں سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ آریان نے چونک کر دیکھا۔ یہ عام سپاہی نہ تھے،
बल्कि सुल्तान के खास मुहाफिज दस्ते के नकाब पोश सवार थे। वो खामोशी से आर्यान के गिर्द दायरा बनाने लगे। इनका सरदार, जिसका चेहरा लोहे के निकाब के पीछे छुपा हुआ था, आगे बढ़ा और अजदे की तरफ देखकर ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, अफसोस शहजादे, सांप अपना काम पूरा न कर सका, मगर आपके गुस्से ने हमारा काम आसान बना दिया। आर्यान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्या मेरे बाप को मालूम है कि यहाँ मेरी जान ली जा रही है? सरदार ने घोड़े से उतरकर एक मोहर लगा हुआ खत निकाला, जिस पर सुल्तान की अंगूठी की मोहर थी। शहजादे, ये हुक्म सुल्तान का है। इस जंगल से वापसी सिर्फ एक की होगी, या तो आपकी या फिर उस राज की जो आपके दिल में छुपा है। आर्यान का सर घूमने लगा। इसे याद आया, कुछ दिन पहले इसने शाही कतब खाने में एक पुराना मुआहदा देखा था, जिस पर इसके बाप और दुश्मन सल्तनत के बादशाह के दस्तखत थे। क्या ये सब इसी वजह से था? क्या एक बाप अपने तख्त के लिए अपने ही बेटे को जहर दे सकता है? अब साजिश आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही थी और आर्यान को समझ आ गया था, वो सिर्फ शिकारी न था, बल्कि खुद एक बड़े जाल में फंस चुका था। जंगल की फिजा मौत की खामोशी में डूब गई थी। बस कहीं दूर गीदड़ों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। शहजादा आर्यान अपने वफादार कुत्ते की लाश के पास बैठा था। इसके हाथों पर अब जरर का गर्म खून लगा हुआ था, मगर उसका दिल और जिस्म बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। सामने खड़ा निकाब पोश सरदार अपने हाथ में शाही फरमान हवा में लहरा रहा था। आर्यान ने कांपती आंखों से उस मोहर को देखा, जो इसके बाप सुल्तान गयासुद्दीन की पहचान थी। बाप ने बेटे के लिए जहर भेजा। इसकी आवाज में यकीन न आने वाला दुख और दर्द ऐसा था जो पत्थर दिल को भी नरम कर दे। मगर निकाब पोश सिपाहियों के दिल खाली थे। इनके लिए बादशाह का हुक्म ही सब कुछ था। सरदार ने घोड़ा एक कदम आगे बढ़ाया और तंजिया अंदाज में बोला, शहजादे, सियासत में रिश्ते सिर्फ सीढ़ियाँ होते हैं, मंजिल मिलते ही इन्हें फेंक दिया जाता है। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत और अवाम में आपकी चर्चा सुल्तान को साफ नजर आ रही थी। आपकी नरमी और रहम दिली इनके तख्त के लिए खतरा बन चुकी थी, जिसे वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्यान ने गुस्से से दांत दबाते हुए अपनी तलवार नयाम से निकाली। तो ये सब एक ड्रामा था। वो शिकार का मशवरा, तन्हा जंगल में भेजना और अज़दा, ये सब पहले से तय था। सरदार जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अज़दा दरअसल एक हादसाती मौत दिखाने का बहाना था, ताकि दुनिया यही समझे कि कुदरत ने शहजादे को छीन लिया है। मगर तुम्हारे इस बदकिस्मत कुत्ते ने हमारा सारा मंसूबा खराब कर दिया। हमें मजबूरी में सामने आना पड़ा ताकि काम अधूरा न रह जाए। इसी लम्हे आर्यान को एहसास हुआ, ये मामला सिर्फ इसकी जान का नहीं। इसे वो बात याद आ गई जो इसने शाही महल के खुफिया तय खाने में रखी हुई एक पुरानी दस्तावेज में पढ़ी थी। वो दस्तावेज एक ऐसे मुआहदे के बारे में थी जिसके तहत सुल्तान गयासुद्दीन अपनी सल्तनत की सरहदें बचाने के लिए दुश्मन मुल्क के बादशाह आजम से वादा किया था कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर देगा, ताकि दोनों रियासतों के दरमियान खूनरेजी और जंग रुक जाए। आर्यान की पैदाइश से पहले ही इसकी मौत का सौदा हो चुका था। ये सोचकर इसके सीने में आग लग गई। वो सिर्फ एक शहजादा नहीं, बल्कि कुर्बानी का जानवर था, जिसे 21 बरस तक सिर्फ इसलिए पाला गया कि एक दिन उसे मार दिया जाए। मेरे बाप ने तख्त बचाने के लिए अपना ज़मीर बेच दिया, आर्यान ने गरज कर कहा। और अचानक एक निकाब पोश सिपाही टूट पड़ा। तलवारों के टकराने की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। आर्यान गुस्से और दुख में जख्मी शेर की तरह लड़ रहा था। उसकी हर ज़रब में एक सवाल था और हर वार पर एहतजाज। इसने पलक झपकते ही 2 सिपाहियों को जमीन पर गिरा दिया, मगर दुश्मन तादाद में ज्यादा थे। लड़ते लड़ते वो इस पुराने दरख्त के पास पहुंच गया, जहां अज़दा अब भी शाख पर लटका बैठा था। अचानक अज़दे ने एक जहरीला खंजर आर्यान की तरफ फेंका, जो इसके कंधे को चीरता हुआ गुजर गया। दर्द की तेज लहर इसके पूरे जिस्म में फैल गई। इसके आसाब कमजोर पड़ने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, मगर उसकी निगाहें अपने करीब पड़े जरर के खून पर जम गई। इसे महसूस हुआ जरर की कुर्बानी इसे सबक दे रही है। अगर एक जानवर अपनी जान देकर मुझे बचा सकता है, तो क्या मैं अपनी जान देकर इस सच को दफन होने दूंगा? आर्यान ने अचानक एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी को तवक्को न थी। इसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। रुक जाओ, इसने जोर से कहा।
सालार ने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को रोक दिया। क्या हुआ शहजादे? मौत सामने देखकर हिम्मत हार गए? आर्यन ने हाँफते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ जो तुम्हारे सुल्तान के हुक्म से भी ज्यादा कीमती है। जिस मेहर वाले खत पर तुम फक्र कर रहे हो, तुम्हें मालूम है इसके पीछे क्या लिखा है? सालार कुछ लम्हे को रुक गया। आर्यन ने मौका गनीमत जानकर बात जारी रखी। सुल्तान ने तुमसे कहा है मेरी मौत के बाद तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मगर सच ये है कि इसी खत के पिछले हिस्से पर तुम्हारी मौत का हुक्म लिखा है ताकि इस राज का कोई गवाह जिंदा न रहे। ये सुनकर सिपाहियों के दरमियान शक पैदा हो चुका था। सालार ने जल्दी से खत को पलट कर देखा। वहाँ कुछ नहीं लिखा था, मगर यही एक लम्हे की गफलत आर्यन के लिए काफी थी। इसने जमीन से मुट्ठी भर मट्टी उठाकर सालार की आंखों में फेंक दी और इसका खंजर छीनकर इसी के गले पर रख दिया। सच बताओ, मेरे बाप ने और क्या मंसूबे बनाए हैं? सिपाही घबरा गए। वो अपने सरदार को मरता नहीं देख सकते थे और न ही शहजादे पर हमला कर सकते थे। इसी कश्मकश में जंगल की दूसरी तरफ से घोड़ों की आवाजें आने लगी। ये निकाब पोश नहीं थे, बल्कि शाही महल के वो पुराने वफादार सिपाही थे जो आर्यन के साथ थे और जिन्हें इस साजिश की खबर मिल चुकी थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। एक तरफ सुल्तान के कातिल खड़े थे और दूसरी तरफ शहजादे के वफादार सिपाही। मगर सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था। आर्यन के जख्मी कंधे से बहने वाला खून जब जमीन पर गिरा तो इस मट्टी तक पहुंचा जहां अजदे के जहर के कतरे गिरे हुए थे। फिजा में अचानक एक अजीब सी नीली धुंध फैलने लगी। आर्यन ने महसूस किया ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक जंगली कदीम मुहाफिज है जिसे सिर्फ शाही खून से जगाया जा सकता है। जैसे ही धुंध हटी, दरख्त के पीछे से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। इसके हाथ में लाठी थी और इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आर्यन के बाप की थी। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। दादा जान, आप तो बरसों पहले वफात पा चुके थे। बूढ़ा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बेशुमार राज छुपे हुए थे। बेटे, इस सल्तनत की बुनियादें सच पर नहीं बल्कि ऐसे झूठ पर रखी गई हैं जिसे बचाने के लिए हर नस्ल को अपने सबसे प्यारे रिश्ते का खून देना पड़ता है। तुम्हारे बाप ने वही किया जो इसके बाप ने मेरे साथ किया था। आर्यन को यूं लगा जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। ये कोई आम सियासी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक नस्ल दर नस्ल चलने वाली लानत थी जो हर शहजादे का पीछा करती आई थी। अब सवाल ये था, क्या आर्यन इस जंजीर को तोड़ पाएगा या वो भी इस खूनी तारीख का हिस्सा बन जाएगा? आर्यन के सामने खड़ा बूढ़ा शख्स जो इसका दादा और पुराना सुल्तान था, किसी साए की तरह लग रहा था। इसकी आंखों में गहरा दुख और एक अजीब सी चमक मौजूद थी। दादा जान, आप तो मर चुके थे। पूरी सल्तनत ने आपका शोक भी मनाया था। आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बूढ़ा अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ा और असदे की तरफ इशारा किया जो अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। बेटे, बादशाहत के तख्त का एक कानून है जो आम लोगों से छुपाया जाता है। यहाँ बादशाह मरते नहीं बल्कि इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है ताकि वो अपने बाद आने वालों पर नजर रख सकें और ये देख सकें वो खूनी वादा पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। आर्यन ने गुस्से और हैरत से पूछा, कौन सा वादा? क्या मेरे बाप ने मुझे सिर्फ एक पुराने मुआहदे की खातिर मारने का हुक्म दिया? बूढ़े ने ठंडी सांसें भरी। नहीं आर्यन, हकीकत इससे ज्यादा खौफनाक है। हमारी सल्तनत के नीचे एक कदीम खजाना दफन है जिसकी हिफाजत ये अजदा करता है और इसकी कई नस्लें करती आई हैं। इस खजाने की ताकत को कायम रखने के लिए हर 20 साल के बाद शाही खानदान के किसी एक नौजवान का खून इस मिट्टी को देना पड़ता है जो सबसे ज्यादा बहादुर और रहमदिल हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि वो तुमसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए चुना कि तुम इस सल्तनत के सबसे कीमती फर्द थे और वो इस खजाने की चमक के सामने अंधा हो चुका था। इसी लम्हे घोड़े की आवाजें बहुत करीब आ गई। जंगल की तारीकी को चीरते हुए खुद सुल्तान गयासुद्दीन अपने दस्ते के साथ वहां पहुंच गया। इसे देखते ही निकाब पोश सिपाही पीछे हट गए। सुल्तान के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि पत्थर जैसी सख्ती थी। इसने अपने बाप साबिक सुल्तान को देखा और फिर आर्यन की तरफ देखकर बोला, तो तुमने इसे सब कुछ बता दिया है? बूढ़े ने सर झुका लिया। ये जानना इसका हक था गयास। आर्यन ने तलवार मजबूती से पकड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हक? आप इसे हक कहते हैं? आपने एक बेज़बान जानवर को मरवाया, मुझे जहर देने की कोशिश की और अब खुद यहाँ आकर मेरा कत्ल अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन अपने घोड़े से उतरकर आर्यन के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए।
आर्यन, तुम मुझे जालिम समझते हो, इस जमीन को देखो। अगर आज तुम्हारा खून यहाँ ना गिरा होता तो ये अजदब पूरी रियासत को जहर से भर देता और लाखों लोग मारे जाते। एक शहजादे की जान पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती नहीं होती। तजस्सुस और दबाव अपनी हद पर था, क्योंकि आर्यन के वफादार सिपाही भी वहां पहुंच चुके थे और दोनों तरफ तलवारें निकल आई थी। एक खूनरेजी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि आर्यन जोर से हंसा, ऐसा कहका जिसने सबको खामोश कर दिया। तुम सब कितने नासमझ हो, जिस सोने के लिए तुमने अपनी नस्लें कुर्बान की, क्या तुमने कभी इस पथरीले प्याले के नीचे खोद कर देखा है? आर्यन ने उस जगह की तरफ इशारा किया जो जरर का खून और अजदे का जहर मिलकर मिट्टी में जज़ब हो चुका था। सुल्तान ने हैरत से नीचे देखा, जमीन फटने लगी। वहाँ से सोना नहीं बल्कि पत्थर का एक पुराना खत बाहर निकला जिस पर एक बद्दुआ लिखी थी। आर्यन ने ऊंची आवाज में पढ़ा, जिस दिन इस जमीन पर वफादारी का खून, कुत्ते का खून और एक बेगुनाह इंसान का खून एक साथ गिरेगा, इस दिन ये झूठा इक़्तिदार खत्म हो जाएगा और सोना राख बन जाएगा। जैसे ही आर्यन ने ये अल्फाज पूरे किए, जमीन कांपने लगी। वो अजदा जो अब तक खामोश था अचानक चीखा और आसमान की तरफ उड़ गया। इसके साथ ही वो पुराना दरख्त भी राख बन गया। सुल्तान गयासुद्दीन पागलों की तरह उस जगह की तरफ दौड़ा जहां वो सोना समझता था, मगर वहां सिर्फ काली मिट्टी और धुआं था। इसकी पूरी जिंदगी की सियासत, इसके गुनाह और इसकी अपनी औलाद से दुश्मनी सब एक धोखे के लिए थी। आर्यन ने जख्मी हालत में अपने वफादार कुत्ते की लाश उठाई और अपने बाप की तरफ देखा जो अब जमीन पर बैठा राख को मुट्ठियों में भर रहा था। आर्यन ने अपनी ताज जैसी पगड़ी उतार कर जमीन पर फेंक दी। अब्बा जान, आपने तख्त के लिए बेटा खो दिया और तख्त ने आपको मिट्टी दे दी। आज के बाद इस सल्तनत का कोई वारिस नहीं, क्योंकि जिस तख्त की बुनियाद अपनों के खून पर हो वो ताज सरों पर नहीं बल्कि कब्रों पर रखा जाता है। आर्यन जंगल से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ एक हारा हुआ बादशाह और टूटी हुई रिवायत बाकी रह गई। लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद सल्तनत उस्मानिया में कभी कोई बादशाह नहीं बना, वहाँ सिर्फ इंसाफ का निज़ाम बाकी रहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।